Hey folks, you are most welcome to the show, and once again we have an amazing guest and also a content creator, as she mentioned, to name the same. And she has been guiding people from the learnings of the Gita, how you can become better in life, in your business, and so on. And today we'll be talking here over regarding how you can grow your Instagram and how you can monetize from your posts and the content that you are creating. So, dear guest, you are most welcome on the show. Thank you so much. Right? Perfect. So, Janvi, actually, the audience is super excited to know a little intro of yours. ओके नमस्ते सभी को। मेरा नाम जानवी है और मैं एक 19 साल की कंटेंट क्रिएटर हूँ, व्हिच आई ऑलवेज मेंशन बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव दैट आई एम like too young to be in this space. But yeah, I create content around Srimad Bhagavad Gita Ji Mahabharat, basically the holistic education of the Vedic lifestyle as well as the knowledge that we have. So जो मेरा मोटिव है that is कि हमारा जो वैदिक कल्चर है और जो आजकल के टाइम पे लॉस्ट कल्चर है, इट्स टाइम टू ब्रिंग दैट बैक. सो द थिंग्स दैट आर सो बैक इन टाइम, नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग दैट इनटू द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. सो विद दैट मोटो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस थ्रू माय वीडियोस कि किस तरह हम इन चीजों से अपना जीवन सुधार सकते हैं, इन चीजों को पढ़ के, एंड हाउ इट कैन एक्चुअली बी a solution to your day to day or modern life problems. So that's what I'm doing. Right, right. So that's quite interesting intro, you know. But the topic that we are here to talk about is like the thing that you are teaching people, I would say, guiding people accordingly. Because of that, you have created a good impact on your audience, and your influence is being, grown up so fast. So, what is the way that you have grown up by teaching the thing that there are a lot of people who are guiding people accordingly, the same that you have, but how you do it differently? I think the content itself speaks that it's very different from what I'm doing, and especially in the content space, जो मेरी growth रही है, I guess that has been because of the consistency that I've maintained. So a lot of people see that I have achieved 5 lakh followers over 6 months, but what they don't see is that I have been working on it since years now. So it's been 2 years of creating consistently content and showing up every day that I have to post a video. तो आई थिंक पिछले 2 साल में द एवरी सिंगल डे मोटो हैज बीन दैट मुझे आज वीडियो पोस्ट करना है, एंड दैट हैज बीन द ओनली सीक्रेट दैट आई हैव ग्रोन माय ऑडियंस, दैट आई हैव ग्रोन माय कम्युनिटी सो फार, दैट वी आर नाउ स्टैंडिंग एट 5 lakh followers. So I guess the only recipe to this particular thing is the consistency that I have maintained over the time, and especially the value. A lot of content creators, a lot of people who have started their business online are working on virality, are working on how to grow. बट आई थिंक वायरलिटी से ज्यादा फोकस करने से अच्छा है कि आप वैल्यू पे फोकस करें, क्योंकि वैल्यू एक जो चीज होती है जब आप वो डिलीवर करते हैं तो वायरलिटी उसका बाय प्रोडक्ट होता है. तो दैट्स व्हाट वी शुड फोकस ऑन कि कितना वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग दैट वायरलिटी एंड दैट ग्रोथ ओवर द टाइम. All right. So, Janvi, that means what you are saying is that you have been consistent for the last 2 years. You have been putting in the content, and there was a certain time when your videos took off and you हाँ, started getting more traction on your social media हाँ, accounts, right? So, एग्जैक्टली. I really want people to understand that it's not a one day game. It has to नॉट be वन डे, taken इट्स consistent. नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि हाँ एक रात में ऐसे चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं हुआ था, किसी के साथ भी Right. नहीं होता. Right. See, for that one chamatkar, I believe you have to be consistent, right? हाँ हाँ, वो हर दिन Okay. आपको करनी पड़ती है चीजें. Perfect. As you mentioned, like, how did you think of starting it on social media? Like, what was the all story? Like, how did you start it for the from the last 2 years? वेरी इंटरेस्टिंगली अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, हालांकि हर पॉडकास्ट पे मैं यही कहती हूँ, बट अब तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पे बताया है. तो मैंने अपना कंटेंट जर्नी तब शुरू किया था व्हेन आई वाज इन क्लास 8th और 9th के आसपास की बात है वो. So I started as a dance content creator. So I have been a performer. I've been into the national levels, and I have been on TV also. So I did all of those things. तो मैंने ना डांस से ही शुरू किया था, और at that time I used to like see people on social media कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं और अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो मुझे लगता है वो कैमरा और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज रही है मेरे साथ जो हमेशा से मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. तो there's always been a knack that I want to be on content space or maybe on social media.
और जब मैंने शुरू किया था तो कंटेंट क्रिएटर जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे। ज्यादा से ज्यादा लोग कहते थे यूट्यूबर, उतना ही था, उतना ही स्पेस कंटेंट क्रिएटर्स थे भी नहीं। तो आई स्टार्टेड एट दैट टाइम, बट मैं काफी एज में कम थी उस टाइम पे और मुझे टेक्निकल चीजों का उतना आइडिया नहीं था, तो आई स्टॉप रनिंग दैट चैनल। बट फिर भी 1 साल तक मैं उस पर काफी कंसिस्टेंट थी, हर हर हफ्ते में 3 वीडियोस उस पर जाया करते थे, एंड आई समहाउ मैनेज्ड इट विद माय बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल। बट फिर जैसे जैसे बोर्ड आते ही चल रही थी तो माय पेरेंट्स सेड लाइक प्लीज स्टॉप। आई गॉट बैक टू स्टडीज, मतलब पढ़ाई तो मैं उस टाइम कर ही रही थी बट थोड़ा फोकस इधर ज्यादा था। बट उसको मैंने फिर बंद कर दिया जब वो अच्छा नहीं चल रहा था। तो लेटर ऑन 11th 12th में फिर जब लॉकडाउन हुआ तो फिर से मैंने कुछ चीजें एक्सप्लोर किया कि मैंने कहा कंटेंट स्पेस तो है ही अच्छा, तो इसको करके देखना ही है मुझे। एंड एट दैट Hmm. टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। तो पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, पढ़ने का मतलब जो अकेडमिक्स से थोड़ा अलग है। तो Hmm. अकेडमिक्स में मैं बहुत अच्छी नहीं थी। इफ आई इफ आई वुड हैव डिसाइडेड आई वुड हैव मेक अ करियर आउट ऑफ इट एज वेल, बट इधर तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे लगता है मेरा पैशन यहाँ है। तो आई स्टार्टेड विथ रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स, और वो नॉन फिक्शन बुक्स को ही मैंने ना शेयर करना शुरू किया ताकि मुझे वो याद रहे। तो आपके माइंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है कि आपने जो सीखा अब आप उसको सिखा दो। तो मैंने वही करना शुरू किया और बड़े ऑटोमेटिकली वो कंटेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ओवर द टाइम मैं उसको करते जा रही थी, बट आई वॉज वेरी डायरेक्शनलेस कि करना है या नहीं करना है, या आगे जाके कुछ अकेडमिक्स में ही परस्यू करना है। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। धीरे धीरे जर्नी में फिगर आउट होता गया। तो इसी बीच फिर मेरी मम्मा ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। और उस टाइम जब मैंने उनको पढ़ते देखा तो मुझे लगा कि कुछ तो भी अच्छा है, एंड शी ऑल्सो मोटिवेटेड मी कि तुम भी पढ़ो, इतने सारे स्पीकर्स को सुनती हो, एंड मोस्ट ऑफ देम गिव क्रेडिट कि हमारी जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं भगवत गीता का उसमें बड़ा अच्छा रोल है। एंड आई वाज लाइक ठीक है देख लेंगे पढ़ के। तो मुझे कभी ये चीजों में उतना विश्वास था नहीं, तो चलता गया। बट फिर भी इनिशियली मैंने पढ़ के देखा और जब एक बारी पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि नहीं इसमें कुछ तो भी बहुत अच्छा है। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग। तो जब एक बार ही पढ़ा, 2 बार ही पढ़ा, जब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई तो मुझे लगा इस समझ में तो आ रहा है, उसको समझाने की जरूरत है ताकि मुझे और अच्छा समझ में आए। तो फिर वहां से मैंने भगवत गीता का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, और वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। यहाँ सेल्फ ग्रोथ वाला कंटेंट भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। तो अभी भी ऑडियंस कंफ्यूज थी कि ये है या वो है, मतलब एक ब्रांड आइडेंटिटी वहां फिगर आउट नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे फिर मैंने पूरा कंटेंट भगवत गीता पे शिफ्ट करते गई, एंड दैट्स हाउ जैसे जैसे मेरा जर्नी इवॉल्व हुआ वैसे वैसे मेरा कंटेंट इवॉल्व हुआ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो कंटेंट बहुत पहले से है मेरे दिमाग में, और उसको प्रोसेस होते 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 मुझे लग रहा है 5-6 साल हो गए अभी। एंड नाउ आई हैव बीन इनटू ऑन दिस स्टेज कि हाँ यहाँ पे अब मुझे कंटेंट ही करना है, और कंटेंट अच्छा चल रहा है तो इसी को आगे लेके जाना है। Nice. That's something interesting. That's something interesting, and हाँ, kudos और to इसके बीच you. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है कंटेंट में, अलग अलग जगह हाथ पैर मार के देखे है कि कहाँ क्या हो सकता है मेरे लिए जो मुझे पैशनेटली करने में अच्छा लगे। एंड दिस इज वेयर आई हैव स्टॉप्ड एंड आई विल ग्रो दिस। Okay, so Janu, here's a question for you, right? That let's say there is a beginner who's starting out growing on Instagram. So, what are the tips that you would like to give to them? मुझे लगता है स्टार्ट करने में सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि हम शुरू कर नहीं पाते। क्योंकि मेरा भी Right. ऐसे ही था कि शुरू करते 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 मैंने 3 महीने लगा दिए थे। डांस करना बहुत अलग चीज होता है कैमरे पे और स्टेज पे भी, मतलब शायद बोलने में मुझे उतना डर, मतलब जितना बोलने में डर लगता है उतना डांस करने में मुझे स्टेज पे डर नहीं लगता है। आई कैन डू इट वेरी नाइसली क्योंकि मेरा आर्ट था वो। लेकिन कैमरे पे बोलना या किसी स्टेज पे बोलना एक स्किल होती है जो मेरे पास नहीं थी। तो उसको सीखना, उसको मास्टर करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, और मुझे लगता है बिगनिंग स्टेज में हम यही नहीं कर पाते हैं। तो शुरू करते करते मैंने क्या किया कि पहले 3 महीने खुद ही प्रैक्टिस करके देखा था। तो मैं फोन में वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, मैं देखती थी उसको हर दिन। ऐसे मैंने 90 दिन करके देखा था। 3 महीने मैंने इसी तरह निकाल दिए थे कि पहले तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैं अच्छा बोल सकती हूँ। तो ऐसे मैंने 3 महीने प्रैक्टिस किया। तो मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा अच्छा बोल लेती हूँ, मैं इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू करती हूँ। तो मुझे लगता है फिर भी मैंने काफी लेट शुरू किया है, और अभी भी जो लोग सोच रहे हैं प्लीज शुरू करो इससे पहले और देर ना हो जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि वो एक जो विल पावर चाहिए होता है ना शुरू करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी चीज का वेट मत करो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।
किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वो एक बार ही सोचेंगे भूल जाएंगे, और एक टाइम बाद जब आप अच्छा करने लगोगे तो वही लोग आके आपकी तारीफ भी करेंगे। तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए। तो दूसरों की जर्नी देखो कैसे उन्होंने शुरू किया, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन लो, थोड़ा देखो कि उन्होंने किस तरह स्टार्ट किया, और बस शुरू करो। और बिगनिंग स्टेज में हम बहुत ज्यादा, एक और चीज होती है कि हम इक्विपमेंट्स के चक्कर में या बहुत प्रोफेशनल या परफेक्ट, एक परफेक्ट बनने की जो कोशिश करते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत किसी की अच्छी नहीं होती, सबकी ऐसी होती है। आज भी मैं अपने वीडियोस जाके देखती हूँ तो मुझे लगता है ये क्या है ये सबको लगता है, एक एक टाइम के बाद आपको लगता है ये क्या है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक जर्नी रही है, इसलिए अब वो वीडियोस देखो और आज के वीडियोस देखो तो उसमें बहुत फर्क आता है। तो ये जर्नी में वो परफेक्शन आ जाता है, चाहे बोलने का तरीका हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे सेटअप की बात हो, हर एक चीज का। तो जैसे जैसे आप इवॉल्व करते हो, आपके साथ आपकी चीजें, आपकी स्किल्स भी इवॉल्व करती है। मुझे लगता है ये दो चीजें हमेशा माइंड में होनी चाहिए कि एक तो शुरू नहीं कर रहे हो, जो शुरू करो इतना सोचो मत, और एक बार शुरू कर दिया तो रुको मत Right. That's something. When you are starting, think why are you starting? Will you stop in the middle or हाँ, you will just continue? Right. Something एग्जैक्टली interesting. exactly. किसी चीज का इनिशिएटिव लिया है तो मैं कहती हूँ उसका फिनिशिएटिव भी लो, उसको फिनिश भी करो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Nice. The great word has been added over here. Initiative till finitiative. Nice. That's हाँ something interesting. Awesome. So, Janvi, is it okay to talk about the monetization part? Like, how do you monetize your content? राइट। तो आई स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किया था। लॉन्ग वीडियो इज समथिंग दैट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर मी। हालांकि मेरी जर्नी बहुत शुरुआत से लॉन्ग वीडियो की रही है, एज आई बीन अ डांस कंटेंट क्रिएटर। तो डांस करना अलग चीज है, जैसे मैंने पहले कहा, और बोलना अलग चीज है। तो लॉन्ग कंटेंट तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया है, तो दैट इज नॉट मोनेटाइज्ड येट। एंड जो इंस्टाग्राम है दैट इज डायरेक्टली मोनेटाइज्ड फॉर श्योर। ब्रांड्स एंड कोलैबोरेशंस इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू नाउ, क्योंकि अभी ऑडियंस ऐसा बिल्ड हो गया है, मुझे लगता है ये ठीक टाइम है उस चीज को करने का। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको मोनेटाइज करना है, बहुत तरीके हैं। यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट या सर्विस, जो मैं आगे जाके फॉर श्योर करने वाली हूँ, एक बार हम यूट्यूब पे भी स्केल कर जाए तब। तो मुझे लगता है वो एक ऑडियंस अच्छी बिल्ड हो जाए वहां पे, तो प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड कर सकते हो आप। अब तो रील्स का भी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन आ गया है, विच इज अ वेरी गुड बेनिफिट, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब नहीं था, और अभी अभी काफी रिसेंटली 4-5 महीने पहले वो लॉन्च हुआ है। तो दैट इज अ Right. गुड अपॉर्चुनिटी। तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट मुझे लगता है कुछ नहीं से तो अच्छा ही है, जीरो से अच्छा तो कुछ होता है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग, है ना। तो वो वाला पॉइंट है। तो रील्स मोनेटाइजेशन है फॉर श्योर, बट मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द थिंग इज दैट ब्रांड्स एंड कोलैबोरेशंस, इफ यू हैव अ गुड कम्युनिटी, इफ यू हैव अ गुड ऑडियंस, तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि ब्रांड भी फिर देखता है आपको कि हाँ ऑडियंस अच्छा है, कम्युनिटी अच्छा है, तो चलो विल इन्वेस्ट इन दैट, इन दिस क्रिएटर। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं बहुत सारे कंपनीज या जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ काम करती हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो आजकल मार्केट में बहुत नए अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपेरेंटली मेरे पास भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत शुरुआत में आया था और बहुत स्टार्टिंग के स्टेज में आया था। तो ऐसा नहीं है कि लाखों फॉलोअर्स होंगे तभी पैसा बनेगा, 1000, 1500, 5000 फॉलोअर में भी पैसे बन सकते हैं। तो आई हैव बिन देयर। तो रील्स क्रिएटर चाहिए होते हैं, एक फेस चाहिए होता है ब्रांड के लिए, कि आप उनके लिए वीडियोस क्रिएट करो, क्योंकि वो उनके पास चाहे तो वो स्किल नहीं होती है, टाइम नहीं होता है। तो Mhm. आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास स्किल है बोलने का, प्रेजेंट करने का, तो कंपनीज को रीच आउट करो, या कंपनीज अगर आपको रीच आउट करे तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, जहां एक ब्रांड के लिए आप रील्स क्रिएट करो एंड यू गेट पेड फॉर इट। तो मेरा मेजोरिटी ऑफ द जो मोनेटाइजेशन सेक्शन था ना, वो इसी से आता था। नाउ तो आई हैव लाइक डिस्कार्डेड कि अभी यहाँ ठीक है, बट मुझे लगता है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को शुरू करना है तो, क्योंकि पहले ब्रांड या कोलैबोरेशन नहीं आते हैं, ये बात का स्टेज है, बट पहले ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बहुत सारी कंपनीज है जो कोर्सेज बिल्ड करती हैं, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, उसके लिए भी काफी अच्छा मोनेटाइजेशन होता है। तो यू लाइक एनी क्रिएटर गेट स्टार्टेड विद दैट। तो ये कुछ मोनेटाइजेशन के तरीके हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। That's something interesting. Can you please tell the audience like how much they can charge to a brand? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोअर्स यू हैव। तो मान लो कि अगर 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स है, तो यू कैन इजीली चार्ज 60,000 to 70,000 फॉर अ रील, एंड सिमिलरली उससे कंपैरेटिवली हाफ प्राइस पे फॉर द स्टोरी एज वेल। तो इतना इतना रेट इज इनफ एंड सफिशिएंट आई गेस इफ यू आर स्टार्टिंग। एंड 100K का फॉलोअरशिप होना इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। तो जैसे जैसे वो फॉलोअर का ग्रोथ बढ़ता है, यू कैन चार्ज एज मच एज यू कैन। तो मुझे लगता है ब्रांड से भी वो इंटीग्रेशन होना इजीली पॉसिबल हो जाता है। तो एक ऐसा प्राइस जो ब्रांड को भी सूटेबल हो, आपको भी सूटेबल हो, एक ऐसा प्राइस आप रख सकते हो।
So this is the common price that I know in the creators. That's something interesting. As you mentioned, people can get started with that amount of हाँ. money. So that's something interesting. So what do you think, like, what was the struggling point for you when you were starting and you now realize that that was a mistake that you were committing? Like it has two questions, एक तो struggle और एक mistake, है ना? Struggle, it's like you while you were committing mistake, that's why you were struggling. देखो स्ट्रगल मुझे लगता है हर एक दिन होता है, क्योंकि Right. आप हर एक दिन गलतियां करते हो, आप हर एक दिन Right. सीखते हो। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं इस बीच में। कभी चीजें अच्छी नहीं चल रही होती है तो आपको लगता है ये क्यों नहीं चल रहा है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है सबको लगता है, तो मुझे भी लगता था कि यार इतना मेहनत करने पे भी कंटेंट क्यों नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पे फोकस था। और उस टाइम तो मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, तो फॉर श्योर रिजल्ट पे फोकस था। तो बाद में मुझे समझ में आया कि अगर एफर्ट्स पे फोकस करोगे तो रिजल्ट तो आएगा ही। तो अक्सर हम वो गलती करते हैं। तो मुझे लगता है वो एक पॉइंट है जहां हमें सीखना चाहिए कि जितना ज्यादा एफर्ट पे फोकस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो एक जो ट्रस्ट होता है हमारे प्रोसेस पे, हम कहीं ना कहीं नहीं करते हैं और दूसरे लोग कर रहे होते हैं लेकिन हम खुद ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। पर्सनली फॉर मी, मेरी जर्नी में मैं जब वीडियो शूट करती थी, तो मैं घर पे जब वीडियो शूट करती थी ना, तो मेरा घर काफी रोड साइड पे है। तो बहुत आवाजें होती थी। तो मैं क्या करती थी, अब कंटेंट के लिए मेरा पागलपन बहुत है, बहुत जुनून है, कुछ करना है कंटेंट में, तो मैं सुबह 3 बजे उठ के वीडियो शूट किया करती थी। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ हर चीज आपका साथ नहीं देती है। तो फिर आपको एक तरीका ढूंढना पड़ता है कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैं सुबह Nice. उठ के 3 बजे रील शूट करती थी, फिर पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी। तो बड़ा अजीब सा साइकिल था मेरा हर एक चीज को करने का, और पूरा बॉडी साइकिल उससे खराब हो रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई टुक द डिसीजन। 6-7 महीने मैंने ऐसा किया, बट उससे पूरा बॉडी क्लॉक मेरा खराब हो रहा था। ना पढ़ाई ढंग से हो रही थी, ना कंटेंट ढंग से हो रहा था, क्योंकि एनी हाउ सुबह उठते ही यू हैव टू शूट द कंटेंट। तो हर दिन आपका माइंड ऐसा नहीं होता है कि हाँ यार आज बहुत अच्छा शूट होगा कभी नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो काफी डिफिकल्ट फेज था। एंड एट दैट टाइम आई टुक अ डिसीजन कि मुझे घर से अलग रहना है। एंड माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव एट दैट टाइम। तो मेरी मम्मा और मैं इस घर से मूव आउट करके अपने घर से 7-8 किलोमीटर दूर रहने गए, जहाँ हम 11 महीने रहे हैं। हमने वहां कंटेंट शूट किया है और वहीं से सब कुछ एक्सपैंड किया है। एंड हार्डली आई वॉज एट 5,000 फॉलोअर्स जब मैंने ये डिसीजन लिया था। तो ये अपने आप में रिस्क था कि कुछ बेस नहीं है इतना बड़ा कि अब जैसे 5 लाख फॉलोअर्स और तब आप ये डिसीजन लो तो आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं कि हाँ ठीक है जो करना है करो। लेकिन 5,000 फॉलोअर्स तो इट इज अ इजी थिंग, स्टिल एन इजी थिंग। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लेना अपने आप में घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अरे ऐसे कैसे, उतना अच्छा चल भी नहीं रहा है फिर भी दे आर मूविंग आउट ऑफ द हाउस। तो मुझे लगता है वो एक फेज रहा है कहीं ना कहीं। अभी भी बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि अभी बोलना बंद कर दिया है। वो तो लोग हैं, कुछ तो कहेंगे। तो अभी भी कुछ ना Like कुछ कहते हैं। that's something true. Like God has given mouth to everyone, and everyone has to speak whatever they feel like, हाँ right? We हाँ, cannot बट मुझे do. लगता है कहीं ना कहीं जो आपके सबसे क्लोज लोग हैं वो आपके साथ है ना, तो फिर ज्यादा टेंशन नहीं होती है। जैसे मेरे Mhm. मम्मा पापा है, तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने उतना नहीं सपोर्ट किया था। मतलब मम्मा ने तो फिर भी सपोर्ट किया क्योंकि उनको पता है मेरा कंटेंट के लिए क्या जुनून है। बट पापा वाज लाइक कि एक बारी पढ़ाई कर लो फिर पैशन फॉलो कर लेना। हम लाइक नहीं मैं पढ़ाई करने गई तो पैशन रह जाएगा, फिर तो मेरा पैशन मर जाएगा। So, Janvi, you are mentioning a topic over here that a lot of people can get distracted. Can you please guide them what to choose between their passion or study? मुझे देखो, मैंने तो दोनों चूज किया था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और मुझे लगता है कि ऑप्शन नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, आप ज्यादा अच्छा मैनेज कर लेते हो। तो मेरे पास तो 12th के बोर्ड्स थे और कंटेंट था, तो मुझे, और 10th के टाइम पे भी यही था, या तो मुझे डांस चूज करना था या तो मुझे 10th। तो मैंने तो उस टाइम 10th चूज किया। बट ठीक है, मुझे लगता है कोई कोई दिक्कत नहीं था, 10th ही था तो कोई दिक्कत नहीं है। और उतना उतना नहीं था, मेरा कोई एम भी नहीं था उस टाइम पे कि हाँ इतना कुछ मैं ग्रो कर सकूं कंटेंट में। ये तो बाद में मुझे कंटेंट इंडस्ट्री समझ में आया और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग व्हाट आई कैन डू। तो मुझे लगता है कि स्टडी के साथ साथ पैशन आराम से मैनेज हो सकता है अगर आपके पास वो गोल है, वो विजन है। बहुत सारे लोग करते हैं यार, जॉब जॉब के साथ वो अपना बिजनेस रन करते हैं, पढ़ाई के साथ रिलेशनशिप मैनेज कर लेते हैं, फिर जब बात पैशन की आती है तो रह जाता है क्यों? क्योंकि पैशन में कहीं ना कहीं गोल उतना क्लियर नहीं होता आपका, तो वो असल पैशन नहीं होता है, वो बस एक शौक होता है। तो मुझे लगता है वो शौक और पैशन के बीच का डिफरेंशिएट आपको डिसाइड करना होता है कि सच्ची में करना है या नहीं करना है।
तो मैनेज हो सकता है। एक टाइम के बाद पैशन को इतना ग्रो करो कि आगे जॉब है या बिजनेस है, जो भी चीजें हैं, जो भी आपका प्राइमरी चीज है, उसको छोड़ के आप सिर्फ पैशन पे फोकस कर सको। तो मैंने वही किया और मुझे लगता है मैंने काफी अर्ली स्टेज में कर लिया, तो अच्छा डिसीजन था। तो जितना अर्ली स्टेज में क्लैरिफाई कर लो उतना अच्छा है। Nice. That's something interesting. What I can observe and understand over here from your journey is you have been consistent and you believe that you can make it happen. हाँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना, क्योंकि कई बार लोगों को भरोसा होता है आप पे, आप कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं होता। लेकिन जिस दिन आपको भरोसा और किसी को भरोसा ना हो आप पे, उस दिन आप कर ले जाओगे और उन सबको बाद में आप पे भरोसा हो जाएगा। Nice. That's something interesting here. I would take the last question is like आपने जैसे बताया कि now you read the Gita, you have been growing your social media through this content. तो आपकी क्या learnings रही हैं? If you can tell three learnings out of Gita that you think that has changed and transformed your life. ठीक है। नंबर वन इज कि पहले पहले अध्याय में ही एक श्लोक आता है, 7th या 8th श्लोक के आसपास का, दोनों ही श्लोक है एक्चुअली। उसका मतलब यही है कि आप जीवन में जो भी चीज कर रहे हो उसका हमेशा एनालिसिस करना सीखो। अब वहां पे बहुत सीधी सी बात है कि अर्जुन, सामने वाले जो विपक्ष है, मतलब सामने वाले जो कौरव है, उनका एनालिसिस करने को कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सामने कौन कौन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, वो एक बार ही देख लो। तो मैंने भी अपने करियर में ऐसा ही किया था। तो मैंने जो जो सीखा ना वो होता गया मेरे साथ एक्चुअली, और वो मैं इम्प्लीमेंट करती गई थी उस टाइम पे, जो भी मुझे समझ में आ रहा था भगवत गीता जी से। तो मेरे सामने दो चॉइसेस थी, या तो पैशन फॉलो करो या तो पढ़ाई करो। तो मैंने अपने मॉम डैड से 1 साल का समय मांगा था कि मुझे 1 साल दो, अगर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाई तो फिर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, या तो मैं वापस पढ़ाई ही करूंगी। हालांकि पढ़ाई में अभी भी कर ही रही हूँ लेकिन मैं फिर उस टाइम पैशन को छोड़ देती शायद उनके कहने पे, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मैंने इस टाइम क्या किया, मैंने एनालिसिस किया कि हाँ, इस फील्ड में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरे क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है इन चीजों में। तो मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, जो भी चीज कर रहे हो उसका एनालिसिस करना हमेशा सीखो। छोटी चीज का एनालिसिस करना अगर आपको आ जाए तो आपको पता है कि ये चीज अच्छी होगी या नहीं अच्छी होगी। जैसे हम कभी कभी कोई इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं या गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके चांसेस थोड़े रेड्यूस हो सकते हैं, थोड़े नहीं, काफी रेड्यूस हो सकते हैं कि आप अच्छे से कोई डिसीजन लो। ऐसे इंपल्सिव या रॉन्ग डिसीजन ना लो जब आप एक चीज को एनालिसिस कर लो। तो मुझे लगता है Right. ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी है। कोई छोटी चीज भी होती है कि कुछ डिसाइड करना है ये या ये, तो आई डिसाइड कि हाँ, इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इट गेट्स क्लियर इन माइंड कि हाँ, क्या डिसीजन लेना सही रहेगा। सेकेंड इज, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है दूसरे अध्याय में ही, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम पूजा करते हैं या कभी कोई हवन करते हैं तो बड़े श्रद्धा से उसको करते हैं, लेकिन हम अपना काम ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं भगवान हमें देख रहे हैं, या भगवान मतलब हम उसको बड़ी श्रद्धा से करते हैं, बड़े विश्वास से करते हैं कि हाँ, इससे अच्छा इस ये करेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा। जैसे कोई एग्जाम होता है तो हम भगवान से बोलते हैं ना, भगवान एग्जाम अच्छा करवा देना। क्यों? क्योंकि आपको लगता है भगवान करवा ही देंगे। लेकिन जब काम की बात आती है तो हमारे अंदर वो डिवोशन नहीं होता, वो डिटर्मिनेशन नहीं होता उस चीज को करने का। कहीं ना कहीं पर्पस क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं डर नहीं है। और डर किस चीज का? कि ये अचीवमेंट पूरी होगी या नहीं। तो मुझे लगता है वो जब जरूरत होती है, जो जरूरत होनी चाहिए एक्चुअली में, जो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं माइंड में नहीं होती है। तो माइंड में होनी चाहिए कि जिस श्रद्धा से, जिस डिवोशन से आप हवन करते हो, यज्ञ करते हो या पूजा करते हो कि हाँ, भगवान ये काम मेरा कर देंगे, वैसे ही अपना कार्य भी किया करो, अपना काम भी उस तरीके से किया करो जहां आपको श्योरिटी हो कि हाँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं अपना 100% एफर्ट लगा के कर रहा हूँ। Nice. एंड थर्ड इज कि किसी भी काम को करने का ईगो, किसी भी काम को करने का क्रेडिट या उसका अहंकार आपके मन में नहीं होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो, आपको हमेशा 24 घंटे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं जो इस समय ये कार्य कर रहा हूँ ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और उसका जो फल है वो भी ईश्वर को ही आप समर्पित कर दे। एंड दिस इज द लाइक अ होल समरी ऑफ श्रीमद् भगवत गीता जी। तो जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म करना, क्योंकि हम काम करते हैं थोड़ी आदत होती है, ये तो मैंने किया है, ये अचीवमेंट तो मेरी है ना। तो वो जो हमारी आदत होती है कि ये मेरा, ये चीज मेरी, ये मैंने किया,
तो आप इतने केपेबल हो क्योंकि ईश्वर ने आपको इतनी शक्तियां दी, इतनी सुविधाएं दी है, तो मुझे लगता है उसका जो फल है वो उनको अर्पण कर देना चाहिए कि आपकी कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहे। तो आपके मन में कभी कोई ईगो या प्राइड नहीं आएगा, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ। तो ये एक लर्निंग हमेशा माइंड में होनी चाहिए। Right. That is super interesting. One has to understand that it can be implemented in your daily life as well if you believe that this is something, right? And this is something what you have been working on, right? Exactly. So thank you so much. Thank you so much for being over here, inspiring the audience, sharing the golden nuggets, and telling them that how they can grow their social media account. And all together, you have also shared what are the learnings and benefits of learning the Bhagavad Gita and how they can implement the amazing things in their life, how they can transform their life from the Srimad Bhagavad Gita, right? So thank you so much for being over here, inspiring the audience, and thank you so much to the audience as well.